Good morning. It's my pleasure to welcome all of you to the valedictory day of the annual faculty development program titled Post-COVID-19 Media, Entertainment and Digital Consumption, organized by VSDMC's External Research Committee. I'm Saloni Bhardwaj, and on behalf of the External Research Committee, I welcome all the participants and our special guest for the first session, Mr. Ravi Tripathi. I also welcome our chairperson, Professor Siddharth Mishra, and our dean, Professor Dr. Charulata Singh. Mr. Ravi Tripathi is going to talk about the changing dynamics of television reporting and presentation. But before I go on to introduce our guest for the first session, I would first like to call upon the dean of our department, Professor Dr. Charulata Singh, for the welcome address. Professor Singh, as we all know, is a renowned media academician who is guiding and mentoring others. Everybody knows by now. Thank you. Yeah, yes. Thank you so much. So as we enter into this 6-day long faculty development program on a very important broader theme of post-COVID-19 media, entertainment and digital consumption. So during the week, we have had sessions on various different aspects of this particular theme. And the faculty members who have joined from various institutes and universities have deliberated on those different 9 or 10 topics which we have covered. And for this session today, we have our guest, Mr. Ravi Tripathi. I'm happy to welcome him. He has a long association with the WIPS, and he's going to talk on the topic changing dynamics of television reporting. So on behalf of Vivekananda Institute of Professional Studies and our department, our chairperson and all the faculty members, I welcome you, Mr. Ravi, and we are eager to listen to you. Over to you, Saloni. Thank you, ma'am. So, Mr. Ravi Tripathi, he has been working as a journalist since 2002. He was associated with JNT Parliament Education Ministry since 2013 till date. He has been covering all these stories. The major assignments that have been covered by him are, first of all, was Delhi serial blast in 2005, and then Bihar election in which president rule was imposed. That also meant the end of Lalu era in Bihar. He also covered all Bihar elections since 2005. He also covered Delhi elections in 2003, 8, 13, 15. He was the first reporter to reach on the spot of the Batla House encounter. He was actively involved. He reported in the 2008 confidence motion that happened against the Manmohan Singh government. Another highlight of his career was the 2008 Bihar Kosi flood coverage. It is important to note that Mr. Ravi did not deter from his passion and responsibilities, and he dedicatedly covered the election during Corona period. He extensively covered the Bihar election in 2020 and Bengal election 2021. He has an expertise in election coverage, like Lok Sabha election 2004, 9, 14, 19, UP and Uttarakhand election in 2017, Gujarat election in 2017, MP and Rajasthan election in 2018, Karnataka election 2018, Haryana election 2019. Sir, we all know and we all follow you. You have been a great inspiration for our students also. Sir, I welcome you. Professor Mishra को आप भली भांति जानते हैं. मैं पहले एक्चुअली प्रोफेसर मिश्रा को ही बुलाना चाहती हूँ इस बातचीत की पहल के लिए. उन्होंने बताया कि आप कितने व्यस्त रहते हैं, और मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने खुद टेलीविजन में काम किया है कि जो पॉलिटिकल रिपोर्टर होता है उसके पास बिल्कुल समय नहीं होता. तो आप पहले व्यस्त थे, इसलिए हम आपसे जुड़ नहीं पाए. लेकिन प्रोफेसर सिद्धार्थ मिश्रा जिनके बारे में आप अभी बात ही कर रहे थे, वो भी हमारे साथ हैं. प्रोफेसर मिश्रा, मैं आपको इन्वाइट करना चाहती हूँ, आप प्लीज इस बातचीत की पहल कीजिए. जब आपसे बात हुई थी और बात भी बड़े मुश्किल हालात में जो करके हुई कि सुबह से वो ब्रीफिंग चल रही थी गवर्नमेंट के ऑपोजिशन पार्टीज को, और पार्लियामेंट में थे, और मुझे पता था कि इस पीरियड में आपको प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने का मौका तो नहीं मिलेगा, बट आई वाज वेरी श्योर कि आई वाज वेरी ईगर कि आप हमारे बीच आए और अपने इसको शेयर करें, एक्सपीरियंस को शेयर करें. खास करके जब हमें एक बात चली है कि टेलीविजन एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है
यूट्यूब के साथ। तो रवि, हम लोग आज कन्वर्सेशन मोड में आपके साथ रहेंगे और कुछ बातचीत की शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद हमारे बाकी कलीग्स भी आपको ज्वाइन करेंगे। तो रवि, जैसे कि मैं एक बात आपसे जो करना चाहता हूँ, जहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ, आपकी जो एक्सपर्टाइज है वो आपकी जो महारत है, आपकी जो एक्सपर्टाइज है वो, जैसे कि आपके अभी प्रोफाइल में सलोनी ने बताया कि इलेक्शन कवर करने की 2005 का चुनाव आपने बिहार में कवर करने की बात कही और 2005 के चुनाव में टेलीविजन को अगर एक तरह से कहें तो इट वाज द न्यू मीडिया, उस समय का न्यू मीडिया था वो, और उसने जो इलेक्शन वायलेंस और बाकी चीज़ों को टेलीविजन ने बखूबी दिखाया अपने इसमें, एंड इट समहाउ कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज ऑफ रेजिम इन बिहार कुछ हुआ। और आज 15-16 साल बाद जब हम बंगाल का इलेक्शन कवर करते हैं तो वहाँ पर भी वायलेंस है, वहाँ अभी भी है और वहाँ भी रही बात है। एक अंतर जो ये आया कि जब वो आपका एक चैलेंज तो था कि जो चुनाव को कवर करने का चैलेंज, भागने का चैलेंज, इमेज उठाने का चैलेंज, लेकिन दूसरा चैलेंज जो आपके सामने, जो मुझे लगा कि 2021 के बंगाल चुनाव में रहा होगा खास करके, वो चैलेंज रहा होगा आपका कि जो एक पैरेलल, जो आपका जो न्यू मीडिया है, जो यूट्यूबर्स हैं और जो डिजिटल टीवी जो आ गया है, हर एक शहर हर एक जगह आ गया है, और वो फट से अपना कुछ वीडियो बना करके अपलोड कर देते हैं, वो कहानी चल जाती है ट्विटर पे और फेसबुक पे या बाकी सोशल मीडिया हैंडल पे, और फिर लोग जाकर उसको फॉलो करते हैं। तो चलिए, अखबार का तो एक अपना स्टैब्लिश रोल हो गया कि वो दिन भर के चीज को रैप अप करके सुबह में खबर, लेकिन टेलीविजन जो है वो कैसे इस चैलेंज को कम्बैट कर रहा है। और आई एम वेरी श्योर कि आप तो खैर इन अ वेरी सीनियर पोजीशन इन द चैनल, आप लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है ये जो नया मीडियम जो आ गया है उसको फेस करने का, काउंटर करने का? सिद्धार्थ जी ने बहुत सारे इशू हमारे सामने रखे। पहला तो इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव जो मैंने 2005 कवर किया और 2021 का बंगाल चुनाव, उसको कहीं ना कहीं कंपेयर किया जाता कि दोनों एक तरह का शासन था। एक जो जिस तरह का दबंगई आपको याद हो लालू के शासन में था, ठीक उसी तरह का दबंगई ममता बनर्जी के शासन में देखने को मिल रहा था। जो चुनाव पोलिंग बूथ पर जिस तरह से बम्बार्डिंग हो रहा था, लालू के जमाने में भी इस तरह की चीजें थी। तो वो एक चीजें थी जिसको कंपेयर करके मैं बाद में बताऊंगा, कोशिश करूंगा इस पर बाद में आया जाए सिद्धार्थ, इसको बाद में आया जाए, पहले कोविड पे चला जाए और अभी जो हमारे चैलेंजेस हैं खासतौर पे कोविड पे बात करते हैं। हाँ, चूंकि इस बार एक चीज मैं एक लाइन ऐड करना भूल गया कि वो यूट्यूब का भी आपके पास चैलेंज था और कोविड का भी चैलेंज था। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चैलेंज। तो शुरुआत करता हूं मैं कि जो एक्सपीरियंस अपना इस दौरान रहा, खासतौर पे कोरोना का जो पीरियड था, ये हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग पीरियड था सर। और तमाम आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा, क्योंकि एक रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा। कोरोना टाइम शुरू होना, लॉकडाउन शुरू होने से ठीक पहले जो पहला चैलेंज होता है, और मेरे लिए जो पहला चैलेंज होता है कि मैं दिल्ली से बाहर रहता हूं और उस समय मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की चर्चा रहती है। कमलनाथ से सत्ता परिवर्तन होकर बीजेपी कोशिश करती है सत्ता परिवर्तन के लिए, पार्लियामेंट सेशन चलता रहता है और मुझे कहा जाता है कि आपको मध्य प्रदेश जाना है। परिवार में टसल है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, इसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन की खबरें आनी शुरू हो गई थी। मुझे ऑफिस से कहा गया, मैं मना नहीं कर सकता था क्योंकि रिपोर्टर के तौर पे एक जिम्मेवारी थी, और मुझे मध्य प्रदेश भेजा गया। लगभग 12-13 दिन के लिए मैं मध्य प्रदेश गया। उसमें मन में डर था कि क्या हो सकता है, क्या अगर वहां गए, अगर लॉकडाउन हो गया तो फंस भी सकते हैं, अगर कुछ कोरोना जैसी स्थिति हो गई तो क्या, कैसे हम अपने को देखभाल कर सकते हैं, और दूसरा परिवार अगर दिल्ली में है तो उसकी कैसे देखभाल कर सकते हैं। तो शुरुआत यहाँ से चैलेंज शुरू होता। और सबसे पहले मैं इस कोरोना के काल में अगर देखें तो हमारे तमाम साथियों ने अपनी जान गंवाई, तमाम साथियों की मौत हुई है, चाहे रोहित सरदाना हो, राकेश तनेजा हो, तमाम प्रिंट के लोग हों। उनको श्रद्धांजलि देता हुआ मैं शुरू करूंगा, क्योंकि ये सारे बड़े नाम हैं और बड़े हमारे दोस्त हैं जो उनके साथ हम लगातार काम करते रहे। रोहित के साथ हमारा 14-15 साल का जी न्यूज का एक्सपीरियंस है काम करने का। राकेश तनेजा हमारे यहाँ असाइनमेंट एडिटर हुआ करते थे, उनकी मौत हो गई फर्स्ट फेज के दौरान, कोरोना का जो पहला वेव आता है। तो एक इन सारे दोस्तों के मौत और इस तरह के लोगों भर्ती हैं, लोगों को डर है, इस बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी थी। तो पहला दौर शुरू होता है मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश में
मुझे लगता है कि 23 या 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान होता है और उससे ठीक पहले 21 तारीख को वहाँ मध्य प्रदेश में एक चर्चा आती है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कमलनाथ, और कमलनाथ करके हो सकता है कि अपने त्यागपत्र का ऐलान करेंगे। और ऐसा ही होता है कि वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो उसके बाद जाते हैं अपने इस्तीफे देने के लिए राज्यपाल के पास, और उसके बाद हम लोग अपना अपना इंटरव्यू करके जल्दी भागते हैं वहां से। अपना अपना सबके फ्लाइट की बुकिंग होती है, जितने रिपोर्टर्स दिल्ली से गए होते हैं, और जैसे हम दिल्ली पहुंचते हैं उसके दूसरे दिन खबर आती है कि एक पत्रकार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था कमलनाथ के, उसको कोरोना हो गया है। अब उसके बाद जैसे फोन लगातार घंटियां बजनी शुरू होती है कि रवि आप तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, आप भी मध्य प्रदेश गए थे, और तमाम साथियों के, ऑफिस के कलीग्स, बाहर के कलीग्स, सबके कलीग्स, और एक डर शुरू होता है कि आपको तुरंत आपको सेपरेट हो जाना चाहिए, तुरंत आपको अपने घर में ही रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। तो पहला माहौल वहीं से मेरे लिए शुरू होता है, एक चैलेंज शुरू होता है कि इस दौर में अब मुझे रिपोर्टिंग भी करनी है, क्योंकि ऑफिस को मैं मना नहीं कर सकता। ऑफिस की तरफ से कहा गया कि आपको घर पे रहना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, कि खबर जो भी आती है खबर आपके पास आएगी, आप अपना मोबाइल में आप जल्दी से आप ये डाउनलोड कीजिए। स्काइप तो हमने डाउनलोड किया था पहले से, लेकिन स्काइप का यूज हम लोग उससे पहले नहीं करते थे। स्काइप पे जो लाइव करते थे, जूम पे जो हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो कई सारे चीज। उसके बाद ऑफिस भी उसी हिसाब से तैयार हुआ और हम लोग को भी उस तरह से तैयार होना शुरू हुआ। पहला वो दौर था, मतलब आपको जैसे लॉकडाउन लागू होता है, लॉकडाउन लागू होने के साथ ही पहला एक हफ्ता मैं घर पे रहा और वर्क फ्रॉम होम हुआ, इसलिए क्योंकि कमलनाथ की पीसी में मौजूद था मैं, और कमलनाथ की पीसी में एक पत्रकार जिसको कोरोना पॉजिटिव आया था, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जो भी लोग वहां रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे मध्य प्रदेश में उस दौर में, चाहे दिल्ली से गए, चाहे मध्य प्रदेश के लोग हों, चाहे बाहर से अपने रिपोर्टर, कोई छत्तीसगढ़ से भेजता है, कोई बगल के स्टेट से भेजता है रिपोर्टर। और आश्चर्य की बात यह है सिद्धार्थ जी कि जब लोगों से बात हो रही थी उस दौर में रिपोर्टर से, तो इतनी सोशल बाइकाट जैसी स्थिति पत्रकारों के साथ हुई। जो मध्य प्रदेश के रिपोर्टर थे, पुलिस उनको ढूंढ ढूंढ के पता कर रही थी आखिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन था मौजूद। अब लोग एक तो जब पुलिस ढूंढने पहुंचती है और घर के आसपास आपके पहुंचती है, तो मोहल्ले में लोग पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है, तो पता चलता है कि एक आदमी को कोरोना हुआ था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी मौजूद थे। तो उस पूरे मोहल्ले में जो डर का माहौल था, आपके साथ बाइकाट वाली किसी थी, इनको कहीं बाहर ले जाइए, जो डर था आपको याद हो शुरुआती दौर में, उस डर का भी सामना हम लोगों ने किया है, और ज्यादातर पत्रकारों ने किया है। क्योंकि मैं अपनी सोसाइटी से जब बाहर निकला एक हफ्ते के बाद, तो हमारे सोसाइटी के लोगों ने भी इसमें ऑब्जेक्शन किया कि भाई इनका ध्यान रखिए, क्योंकि सोसाइटी से बाहर आते जाते हैं तमाम लोग। आपको याद होगी फर्स्ट पेज जब लॉकडाउन हुआ तो एकदम आपको शहर से निकलना ही बंद था, कोई भी नहीं जा रहा था। जो पुलिस पर्सनल थे, मीडिया के लोग थे, और कुछ लोग जो अपने मेडिकल सर्विसेज वाले लोग थे। तो वो सबसे बड़ा दौर था, उसमें डर ये था कि आप घर से बाहर निकल भी रहे हैं, आपको सावधानी बरतनी है, रिपोर्टिंग करनी है, सड़क पे कोई नहीं दिखता था। दिल्ली में हम, अगर मयूर विहार में रहता हूँ, यहाँ से अगर अब मुझे विजय चौक जाना होता था तो मुश्किल 7-8-10 मिनट में वहां पहुंचते थे। लेकिन उसके बाद जब लौटते थे तो गेट पे 2-3 लोग इस बात पर नजर रखते थे कि रवि त्रिपाठी सोसाइटी में आए हैं, तो इनको सावधानी बरतना है और अपने को इनसे थोड़ा दूरी बरतना है। कुछ खबरें भी आई, कुछ जानकारी भी लोगों ने कहा कि भाई ऐसी सी बात है, इनको बोलिए थोड़ा लोगों से कम मिलें। खेलने हम जाते थे, बैडमिंटन खेलते थे, वो हमने बंद किया। तो एक डर का माहौल शुरुआती ये हुआ, लेकिन उसमें हमने सावधानी बरतते हुए अपनी रिपोर्टिंग शुरू की। रिपोर्टिंग शुरू करते आपने, मैंने कहा आपको, जैसे हम लोग स्काइप लाइव करते थे उस समय, जो भी खबरें मध्य प्रदेश से आ रही थी डेवलपमेंट की, चूंकि मैं उसको कवर कर रहा था, तो मुझे लाइव करना था। अब लाइव करना है तो क्या माध्यम था, उससे पहले हम लोग, हमारा ओबी वैन आके हमारे घर के बाहर खड़ी होती थी, चाहे हम विजय चौक पहुंच के वहाँ लाइव करते थे। लेकिन ये जो दौर था उसमें हमें घर से लाइव करना सिखाया। सबसे पहले हम लोगों ने ट्राईपोड खरीदा जाकर, जब हमारे जितने रिपोर्टर थे, एक टीम बनी, हम लोग सब गफ्फार मार्केट गए। आपको बताना चाहता हूँ, गफ्फार मार्केट जाके सब लोगों ने ट्राईपोड खरीदा, और लाइव करने के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, लाइट्स उसमें लगाने पड़ेंगे, अगर अंधेरे में है तो लाइट्स लगाना पड़ेगा आपको, टॉक बैग्स खरीदने पड़ेंगे, तमाम वो चीजें जो आपको चाहिए थी वो सब जाके हम लोगों ने उसको खरीदा वहां से। और इस खरीद के बाद हम लोगों ने ये शुरू किया कि भाई किस तरह से आपको इस दौर में रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि मोजो जर्नलिज्म की बात जो है पहले आई थी। एक दौर में हम लोग को ट्रेनिंग दी गई थी, और ये शुरुआत आपको बताऊं कि 2017-18 में हर चैनल में, चाहे वो जी न्यूज हो, चाहे आज तक हो, चाहे एनडीटीवी हो, तमाम चैनलों को ने एक रिपोर्टर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए तैयार करने के लिए, क्योंकि आपको डिजिटली तैयार होना है, आज या कल आपको तैयार होना है, ये बात बताई गई। बाकायदे एक दिन का वर्कशॉप रखा गया था जी न्यूज में, और उस वर्कशॉप में हम लोगों को कहा गया कि आप मोबाइल से जाकर, नॉर्मली तो आपके साथ कैमरा मैन जाता है, लेकिन आज अपने मोबाइल से जाइए और फिल्म सिटी से बाहर जाके किसी एक थीम पर, जो आपका थीम है, आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, आज का पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, जो क्राइम करता है उसको क्राइम का डेवलपमेंट क्या है, जो
फिल्म सिटी फिल्म कवर करता है उसको फिल्म का डेवलपमेंट क्या है, जो स्पोर्ट्स कवर करता है उसको स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट क्या है। उस सारे मामले पर आप अपना एक थीम तैयार कीजिए, एक स्क्रिप्ट मान लीजिए पहले तैयार कर लीजिए। नॉर्मली हम लोग स्क्रिप्ट बाद में लिखते हैं, लेकिन उसमें था कि स्क्रिप्ट तैयार कीजिए और जाकर आप एक मोबाइल पे एक ऐप हम लोग को बताया गया, इस ऐप को आप समझिए और खुद एडिटिंग करनी है। पहले आप हम लोग स्टोरी आप कैमरे से जाके शूट करते थे, फिर आते थे उसको इंजस्ट करते हैं अपने सिस्टम में, सिस्टम इंजस्ट करने के बाद वीडियो एडिटर को लेकर हम बैठते थे, वीडियो एडिटर उसको एडिट करता था। लेकिन इस सिस्टम के तहत हमें बताया गया कि आपको खुद ही एडिट करना सीखना है। हालांकि टीवी पता नहीं कई बार होता है कि आप पहले इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि इन सब चीजें आपको करनी पड़ सकती है आने वाले दौर में। जो डिजिटल की बात आ रही है, चाहे फिर यूट्यूब की बात आ रही है, यूट्यूबर्स की बात आ रही है, इस चैलेंज को जूझने के लिए इसकी समस्याएं शुरू हो गई थी। समस्या हमारे लिए थी, हालांकि इसको चैलेंज माना हमने, समस्या नहीं माना, चैलेंज माना। कुछ लोगों को उस समय डर था, हमारे कई जो रिपोर्टर्स थे, हमारे कलीग थे, वो कहते थे यार कैसे होगा, एक ही मोबाइल से रिपोर्टिंग भी कर लेंगे, अपने से लाइव भी करेंगे, अपने मतलब तमाम सारे आपको विरोधाभास के बाद आपको ये चीज सीखना था। तो हम लोगों ने उस दौर में जो सीखा था थोड़ा बहुत, वो इस वक्त काम आया कि आप मोबाइल्स का यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में आपको फ्रेमिंग भी करनी है लाइव के लिए। जैसे हम अभी बैठे हैं तो हमारा हेड कितना बचना रहना चाहिए, हेड ऑन में कितना टिगर का स्पेस होना चाहिए, कितना नीचे स्पेस होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें उसमें बताई गई थी। तो ये काम आया और शुरुआती दौर में हमने उसको लागू किया और एक तरह से लाइव का जो प्रोसेस था मोबाइल पर, मोबाइल हमने शुरू किया। तमाम सारी चीजें शुरू होती है। सिद्धार्थ जी, सबसे बड़ा जो विषय था इसमें, क्योंकि हम जानते नहीं थे इस विषय में, जो कोरोना का इशू था किसी को नहीं पता था, क्योंकि 100 साल में पहली ऐसी त्रासदी आई जिसके बारे में न डॉक्टर बहुत ज्यादा जानते थे, न तो किसी एक्सपर्ट को बहुत ज्यादा जानकारी थी, न रिपोर्टर्स को जानकारी थी। और खास तौर पे एक ऐसा सब्जेक्ट, हेल्थ ऐसा सब्जेक्ट है, आप भी जानते हैं सिद्धार्थ जी की एक आधा रिपोर्टर होता हर चैनल में या हर अखबार में जो हेल्थ को कवर करता है, वो भी ज्यादातर महिलाएं होती है या एक आध और रिपोर्टर होते हैं जो इस विषय के एक्सपर्टीज होते हैं। हम तो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करने वाले हैं, हम लोग को ज्यादातर हेल्थ से मुकाबला नहीं होता है, चाहे उससे मतलब नहीं होता है। लेकिन इस समय में आपको समझना था इस विषय को, क्योंकि जानकारी एकदम नहीं है और जानकारी किसी को नहीं है। पूरी दुनिया में ये कहीं ना कहीं त्राहिमाम फैला हुआ था, लोग मर रहे हैं, क्या वजह है, किस तरह के सिम्टम्स है, सिम्टम्स को लेकर जानकारी, कैसे इससे बचा जा सकता है इसको लेकर जानकारी, सरकार की आलोचना करनी है तो किस हद तक करनी है, क्योंकि सरकार के पास भी बहुत सारे चीज नहीं थे। आपको याद हो कि उसके बाद सरकार ने बाकायदे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था शुरू की कि हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी सरकार की तरफ से नेशनल मीडिया सेंटर में, और रिपोर्टर्स को ब्रीफ किया जाता था कि आज ये सिचुएशन है। और खाली उसमें सरकार के लोग नहीं होते थे, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ साथ उसमें आपको एम्स के डायरेक्टर होते थे, उसमें आईसीएमआर के जो चीफ थे वो होते थे, वो बताते थे कि ये सिम्टम्स है, अभी इसका जो ये जो अभी कोरोना आया है इसमें ये चीजों से बचना है, आपको इसका ध्यान रखना है, इतने लोगों तक इसका असर हुआ है। तो तमाम सारी चीजें जानकारी सरकार से लेना और उसको समझ के फिर जनता तक समझाना। उस दौर में आपको सिद्धार्थ ये भी बताना चाहूंगा और आप तमाम लोगों को जानना चाहिए कि एक शख्स नहीं जाता था, घर से नहीं निकलता था। मीडिया जो कॉन्फ्रेंस हॉल होता था उसमें भी गिने चुने लोग होते थे। एक आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता था, कम से कम हर 2 चेयर के बाद लोग रिपोर्टर्स बैठे होते थे और उन सबके सवाल लिए जाते थे। और सवाल भी सरकार इसलिए जानबूझ के लेती थी कि इन सवालों का जवाब देने से जनता में क्लियरिटी आएगी। तो हमारे सामने उस समय 2 चुनौती थी। एक तो कई सारी चीजें निकल के आ रही थी, ये कि भाई इस हॉस्पिटल में इतने लोग भर्ती हैं, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। इस हॉस्पिटल के मॉर्चुरी में इतनी सारी बॉडीज पड़ी हैं, उनको ले जाने वाला कोई नहीं है। एक तीसरी चीज आ रही थी कि शमशान घाट में लाइन लगी है बॉडीज की और वहां कोई देखने वाला नहीं है, वहां उनको जलाने की व्यवस्था नहीं हो रही है। तो वैसी स्थिति में इन खबरों को चलाना भी था, जानकारी भी देनी थी और सरकार का वर्जन भी उस पर लेना था। उसका फायदा भी हुआ। मुझे आज भी याद है कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में जो स्थिति थी, एक एक बेड पर 2-2, 3-3 लोग थे, पड़े हुए थे। आपको आरएमएल हॉस्पिटल की स्थिति है और रिपोर्टर्स में भी एक चुनौती थी। देखिए एक रिपोर्टर कोई, इसमें सावधानी भी बरत रहे हैं हम कि हमको कोरोना से बचना है, लेकिन कोई एक रिपोर्टर जिसने चैलेंज उठाया और वो घुस गया हॉस्पिटल के अंदर, वो घुस गया मॉर्चरी के अंदर। अब ऐसे जब आप यूट्यूबर की बात करें तो कई ऐसे यूट्यूबर जो होते हैं इस तरह का चैलेंज लेते हैं, वो गए और उन्होंने मॉर्चरी से लाइव कर दिया, दिखा दिया, ये तस्वीर उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली और उसके बाद आपको भी उसको फॉलो करना है, क्योंकि सिचुएशन है, करंट हालात आपको बताना है कि हाँ ये स्थिति है और उससे सुधार भी होता है। क्योंकि मुझे याद है कि एलएनजेपी का जो हालात बताया गया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था उस वक्त में, और सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेकर दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को दोनों को कहा कि आप मरीजों के हालात को देखिए। उसके बाद आपको याद हो कि केंद्र सरकार एक्टिव हुई थी, केजरीवाल साहब अपना सरेंडर कर गए थे कि हमसे हमारे बस का नहीं है। उसके बाद बाकायदा मीटिंग बुलाई गई, तमाम सारे सेंटर्स खोले गए और उसके साथ साथ आपको अमित शाह ने मीटिंग बुलाकर और एलएनजेपी हॉस्पिटल का दौरा किया
और उसके बाद बताया गया कि भाई सीसीटीवी पर आपको फुटेज देखना, सीसीटीवी पर मॉनिटरिंग की जाएगी, हर वार्ड की मॉनिटरिंग, हर वार्ड में किस तरह से लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है, लोगों का ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोगों को दवाई ठीक से मिल रही नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीजें सुधार भी हुई। मीडिया एक बड़ा रोल उसमें अदा कर रहा था, क्योंकि मीडिया को समझना भी था, अपने आप को बचना भी था और इंफॉर्मेशन भी देना था, सारी जानकारी देनी थी। तो ये पहला फेज था जिसकी जानकारी जो हम लोग शुरुआत में करते थे। हम लोग, स्थिति ये थी कि हम लोग घर से निकलते थे और विजय चौक जाकर बैठ जाते थे। और विजय चौक में जैसे आप, हम लोग कई बार चर्चा करते थे कि गांव में जैसे जाकर लोग खेत की पहरेदारी करते हैं, आम के पौधों की पहरेदारी करते हैं, वैसे हम लोग कुर्सी लगा के, हम लोग सबने कुर्सी खरीदा बकायदा अपने अपने अलग, क्योंकि आप किसी के साथ बैठ नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, तो अपनी अपनी कुर्सी, हर रिपोर्टर ने अपनी कुर्सी अपनी गाड़ी में, अपने डिक्की में कुर्सी रखी होती थी, वहां निकाल के सब लोग बैठते थे। और बैठने के बाद ये चर्चा होती थी कि भाई क्या क्या खबरें आपस में शेयर करना है, क्योंकि ये संकट का दौर है, आपको एक दूसरे से शेयर भी करना है खबर। तो विजय चौक पे बकायदे हम दिन भर बैठते थे, क्योंकि आपके पास कहीं जाने का ऑप्शन नहीं था। कोई नेता आपसे मिलना नहीं चाहता था, कोई एक्सपर्ट आपसे मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि मिल के बातचीत करने का डर था कि कुछ कोरोना हो जाएगा। और चूंकि हम लोग फील्ड में ज्यादा घूमते थे, हमारा एक्सेस ज्यादा था, हमको कहीं कहीं जाना था, तो उस वक्त में हम लोगों ने एक और चीज सीखा। फिर हमने अपने नेताओं को, उन एक्सपर्ट को तैयार किया कि भाई हम तो कर सकते हैं अगर मोबाइल बाइट, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। एक आध दिन उसमें हमें लगा, हमने उनके पीए को समझाया, भाई ये देखो ये मोबाइल है, इस तरह से ये रिकॉर्ड करना है और इतना बाइट रिकॉर्ड करके आपको मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना है। उससे फायदा ये हुआ कि हमने जो ट्रेंड किया उनको, तो बाद में सिद्धार्थ जी भी कई जगह चैनल पे लाइव बैठते होंगे, जाते होंगे, तो हमारे जितने गेस्ट थे वो भी इस हिसाब से तैयार होते चले गए, उनको स्काइप पे लाइव करने का, उनको जूम पे लाइव करने का, उनको डिजिटली तमाम चीज आपको कहा जाए तो सीखने का एक मौका मिला। तो आज भी मैं देखता हूँ कि तमाम नेताओं के लिए और चैनल के लिए एक फायदा हुआ। एक वक्त में चैनल को बड़ी बड़ी ओबी वैन भेजनी पड़ती थी लाइव के लिए, एक आपको कैमरामैन भेजना होता पड़ता था, एक इंजीनियर जाता था, आज कोई नहीं जाता है। आज सिद्धार्थ जी अपने घर पे बैठे हैं, अपना कैमरा इन्होंने लगाया, इनको जैसे बताया कि भाई 2 बजे आपका लाइव है, तो 1:57 पर सिद्धार्थ जी खुद तैयार है, उन्होंने अपना सारा सेटअप लगा के। एक हमने खुद भी सीखा और अपने सामने वाले को, जिनसे हमारा नाता है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे फिर आपको एक्सपर्ट हो, चाहे मीडिया के हमारे सीनियर सिद्धार्थ जी जैसे लोग हों, तो इन तमाम लोगों को सीखने का भी मौका मिला। मतलब एक चैलेंज के माहौल में कहते हैं ना, आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता थी, भाई आपको इंटरव्यू चाहिए, कोई इंटरव्यू देने को तैयार नहीं है। अब चैनल को भी एक्सेप्ट करना था कि आपको जो मोबाइल बाइट आई उसको इस्तेमाल करना है। एक जमाना था, मुझे याद है कि गलती से अगर मोबाइल से मैंने कुछ भेज दिया तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसी चैनल में रहते हुए 2014 में मैंने चाइना का दौरा किया। अब मैं संघई गया था, सिद्धार्थ जी आपको ध्यान होगा, संघई गया था, परिवार के साथ गया था। और उस समय चर्चा थी कि बुलेट ट्रेन आने वाला है, हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन लाने की बात मोदी जी कर रहे हैं। मैंने बाकायदे मोबाइल से, मेरी पत्नी ने उसको रिकॉर्ड किया और मैंने वॉक थ्रू किया कि ये बुलेट ट्रेन है, इसमें मैं बैठ रहा हूँ, ये इसकी स्पीड दिखाते हुए इसमें खाने की कैसे व्यवस्था होती है। मतलब एक एक चीज हमने, रचना को चूंकि टीवी का कुछ नॉलेज था और जो मीडिया से जुड़ी रही है, तो उसने पूरा रिकॉर्डिंग की। और जब मैं उस सारे रिकॉर्डिंग को लेकर आके ऑफिस को दिया, तो उस ऑफिस में उसको नहीं चलाया गया। इसलिए नहीं चलाया गया कि उस मोबाइल की क्वालिटी जो है बहुत पुअर होती है। मोबाइल के वीडियो को हम नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे चैनल की बेइज्जती होगी। और उसके महीने भर बाद आज तक की रिपोर्टर जाती हैं टीम अपना कैमरा लेकर, तमाम चीज लेकर, मतलब उसमें सारा उनका खर्चा है, एक टीम जाती है। मैं खुद फ्री में वो सारा चीज लेकर आया, तो उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन चूंकि संकट का समय था, तो आपको टीवी ने सब चीज सीखा। इसी मोबाइल से हम सब कुछ रिकॉर्ड करके आज देते हैं, आज लाइव भी करते हैं, उससे वीडियो भी आपको रिकॉर्ड करते हैं, उससे तमाम चीजें करके देते हैं, और सब लोग उसको आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं चैनल पे। तो कहीं ना कहीं इस दौर में चैनल ने भी अपना रुख बदला है, चैनल ने भी अपना सिस्टम बदला। अब जी की बात करें, आपको जी न्यूज में आप लोग सब लोग जानते होंगे कि कोरोना के फर्स्ट वेव में लगभग 150 से ज्यादा हमारे एम्प्लॉय जो है कोरोना के चपेट में आए थे, और खासतौर पर डेस्क के लोग। और डेस्क में चूंकि काम किया, आपके लोग यहाँ बैठी हैं, उनको डेस्क पे देखा उन्होंने काम करते हुए चीजों को। तो डेस्क में क्या होता है कि आपको शिफ्ट जब ओवर होता है तो दूसरे को हैंड ओवर करना होता है। और हैंड ओवर के सिस्टम में एक शिफ्ट वाले को अगर कोरोना हुआ और उसने दूसरे वाले के साथ मीटिंग की, उसको बताया ये लिस्ट है, अभी की खबर है और ये आगे होने वाली है, उस लिस्ट में हैंड ओवर शिफ्ट के चक्कर में हमारे चैनल में तमाम 3 शिफ्ट होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। तीनों शिफ्ट के लोग चपेट में आए कोरोना के। और एक हालात ये था कि एक समय में चैनल में हमारे मुश्किल से 10 या 15 लोग काम करने वाले बैचे थे, जहाँ 250-300 के स्टाफ की कैपेबिलिटी होती है, वहाँ 10-12 लोग थे। और हम लोग के जिम्मे ये था कि हम थ्रू आउट मोबाइल पे
किसी विषय पे अपना ज्ञान देते रहते थे, क्योंकि चैनल को लाइव चाहिए, डेस्क पे लोग काम करने वाले नहीं है, लिखने वाले नहीं है। हमको लिखना भी होता था, हमें यह भी कहा गया कि भाई आपको स्क्रिप्ट लिखकर बकायदे अपनी ये कहानी लिखकर फटाफट भेजिए, ताकि हमारे पास डेस्क की कमी है, लोगों की कमी है डेस्क पे लोग। तो ये दौर अलग अलग दौर रहा, मतलब हम रिपोर्टर्स के लिए भी चैलेंज था जो ऑफिस में काम कर रहे थे, क्योंकि ऑफिस में काम करने का जो सिस्टम होता है सेंट्रलाइज एसी होता है, उसमें कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा होता है, चाहे आप जिस भी ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो न्यूज के दफ्तर में खासतौर पर ये सबसे बड़ा संकट था, और सबसे बड़ा संकट झेला जी न्यूज ने, क्योंकि लगभग 150 के आसपास स्टाफ और कई लोगों का डेथ भी हुई। हमें अफसोस इस बात का कि उस दौर में हमारे कहिए कि नासमझी कहिए, चाहे हम उस समय सब लोग इस बात को भाप नहीं पाए थे चैनल के लोग। हालांकि बाद में कई चैनलों ने, मैं देखा कि आज तक हो, इंडिया टीवी हो, जी न्यूज हो, तमाम चैनलों ने अलग अलग सेंटर्स खोले। आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज तक के 3 से 4 सेंटर्स दिल्ली में थे। एक मान लीजिए फिल्म सिटी में है, तो एक सेक्टर 62 में उन्होंने अलग से अपना वो लिया, पूरा सिस्टम लिया। एक सीपी के आसपास उन्होंने सिस्टम लिया, क्योंकि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करने वाले लोग सीपी के आसपास ज्यादा रहते हैं, तो सीपी के आसपास उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लिया। इसी तरह इंडिया टीवी के लोगों ने किया कि भाई 3 जगह कम से कम, कि मान लीजिए अगर कोरोना होता भी है तो कुछ एक सिस्टम रहेगा जो चैनल को चलाता रहेगा। इस चैनल के चैलेंज को देखते हुए लोगों ने अपने रुख को बदला, लोगों के सिस्टम को अपना बनाया कि भाई लोग एक नहीं 3 जगह 4 जगह से काम करेंगे, ताकि अगर एक जगह कुछ होता भी है तो पूरा सिस्टम कोलैप्स ना हो जाए। तो ये सावधानी पहले दौर में लोगों ने बरती। मैं अब इसके अलावा देख रहा था कि आपको चूंकि जानकारी कम थी, तो जानकारी कम होने का वजह था कि आपको एलोपैथिक भी मेडिसिन लोग ले रहे थे, होम्योपैथ की दवाई भी आप लोगों ने, हो सकता है आप लोगों ने भी खाई होगी सबने, कई ने रिकमेंड किया तो उसको पता चला लोग होम्योपैथिक दवाई भी खाने लगे। बाद में आया कि काढ़ा पीजिए, सबसे सुटेबल है, काढ़ा का सबसे बड़ा फायदा है, तो काढ़ा लोग पीने लगे। तमाम सारी चीजें थी इस दौर में, और हमने उसको दिखाया, ऐसा नहीं कि हमने नहीं बताया। मुझे याद है कि मैं यहाँ जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी है सरिता बिहार में, शायद कम लोगों को जानकारी होगी। जैसे अपना एम्स है, वैसे ही आयुर्वेद का एम्स भी है सरिता बिहार में। वहां मैं गया बकायदे, चूंकि उस समय इसकी डिमांड ज्यादा थी, लोग डर रहे थे दवाई, चूंकि पता नहीं था कि दवाई क्या खाना है। आपको एक क्रॉसिंग लेना है और एक आध और दवाइयां लेनी थी अगर आपको फीवरिश है या कोई माहौल है। तो उस चीज के लिए हम जाकर, हम ही नहीं, तमाम और रिपोर्टर्स ने भी जाकर वहां पे पूरा डेमो किया कि आपको अगर काढ़ा पीना है तो क्या क्या चीज करना है, काढ़ा के अलावा और क्या क्या सावधानी बरती जा सकती है घर पे रहते हुए। आपको बाहर नहीं निकलना है, हॉस्पिटल जाना नहीं है, तो घर पे रहते हुए आप इन सावधानियों से कोरोना से बच सकते हैं। तो ये एक चैलेंज था जिसको आपको समझना। जैसे आपने सिद्धार्थ जी कहा, ये भी सारी चीज यूट्यूबर से आपको कंपटीशन था। यूट्यूब के वाले जो लोग हैं वो तुरंत पहुंचते हैं और इन सब चीजों को तुरंत यूट्यूब पर डाल देते हैं। तो पब्लिक जो जनता है उसको चाहिए कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इन्फॉर्मेशन को जरूरी नहीं है कि टीवी दे दे, उनको जहाँ यूट्यूब पे मिल जाए, उनको डिजिटल किसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, और लोग तुरंत सर्च मारते हैं। आजकल तो बच्चों को देखता हूँ, छोटे बच्चे एक एक इन्फॉर्मेशन तुरंत सर्च करके निकाल लेते हैं। तो वैसी स्थिति में जो चीज आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जा रही है, उसको चैलेंज मीट करने के लिए आपको भी उतना ही कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है, उन जगहों पर जाना पड़ता है, उसको आपको दिखाना पड़ता है। अगर आपके पास टीवी का सिस्टम नहीं है तो आप मोबाइल से कर सकते हैं, सारा कुछ मोबाइल से रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके हम ऑफिस भेजते थे और उसको चलाया जाता था, क्योंकि ऑफिस उसके लिए जरूरी था, कंपलसरी था चीजों को। अब सिद्धार्थ, इसके बाद मैं दूसरे विषय पे आना चाहूंगा कि जो हमारे लिए जो पार्ट 2 जो इम्पोर्टेंट था, वो इम्पोर्टेंट था फील्ड रिपोर्टिंग और साथ साथ फैक्ट की रिपोर्टिंग। फील्ड और फैक्ट रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट था कि फील्ड में आपको जाना ही जाना है, जो मैं बात कर रहा था, और फैक्ट को आपको बताना ही बताना है। चाहे हॉस्पिटल जाके बताइए, चाहे आप शमशान घाट जाके बताइए, चाहे आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की बताया। तो मैंने कहा कि चुनाव वाली जो चर्चा थी, तो फर्स्ट फेज में जब ऐसा लगने लगा था कि पहले फेज के बाद कोरोना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और पूरे देश में, आपको याद हो कि पूरे दुनिया में ये कहा गया था कि हिंदुस्तान में बिहार चुनाव एक यूनिक चुनाव होगा, क्योंकि कोरोना के दौर में कई देशों ने अपने चुनाव को टाल दिए थे, और हिंदुस्तान में चुनाव आयोग ने पहली बार ये ठाना था कि हम इस कोरोना के दौर में चुनाव कराएंगे, लेकिन उसके लिए पूरी सावधानी बरतते हुए चुनाव कराएंगे कि क्या पोलिंग बूथ पर क्या नॉर्म्स होंगे। पहली बार वर्चुअल रैली के जरिए, मुझे याद है कि प्रधानमंत्री हो चाहे तमाम लोगों ने वर्चुअल रैलियां की बिहार चुनाव से पहले शुरुआती दौर में, कैसे चुनाव कराए जाए। तो पॉलिटिकल जो सिस्टम था उसको आपको एनर्जाइज करना था। कहा जाए था संवैधानिक संकट हो जाएगा अगर चुनाव नहीं हुआ तो, लेकिन अब संवैधानिक संकट से बचने के लिए पहला वो दौर था, पहला चुनाव था बिहार चुनाव पूरे दुनिया में। चुनाव आयोग ने तमाम लोगों से बैठकें की और उसके बाद ये तय किया कि हम चुनाव कराएंगे, बट ये सिस्टम के तहत जिस नॉमिनेशन के लिए, सिद्धार्थ भी जानते होंगे, तमाम नॉमिनेशन आपने देखे होंगे,
बड़े बड़े नेताओं के जिस नॉमिनेशन में धूम धड़ाके से बैंड बाजे के साथ लोग जाते थे, उसमें कह दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से सिर्फ 5 लोग जाएंगे नॉमिनेशन में। तो कई लोग उदास भी थे कि हम अपनी शक्ति प्रदर्शन कैसे कर पाएंगे। लेकिन चुनाव लड़ना है, उसका सिस्टम एक बनना था। पोलिंग बूथ पर हम लोग गए जब रिपोर्टिंग के दौरान, तो उसमें भी ये ध्यान रखना था कि भाई क्या हो रहा है, क्या उस चीजों का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, क्योंकि आपको ये कहा गया था कि हर पोलिंग बूथ पर सारी सुविधाएं रहेंगी जो एहतियात बरतने के लिए, चाहे आप मास्क की बात करें, चाहे सैनिटाइजर की बात करें, चाहे फेस मास्क की बात करें, चाहे हैंड ग्लव्स की बात करें, तमाम वो सिस्टम उसको इस्तेमाल किया गया था। तो बिहार चुनाव वाज द फर्स्ट एवर इलेक्शन इन द वर्ल्ड जिसको याद किया जाएगा हमेशा कि कोरोना के दौर में, उस ऐसे संकट के दौर में आपने एक चुनाव कराया और सक्सेसफुल चुनाव कराया, जिसमें रैलियां भी बाद में हुई। ऐसा धीरे धीरे उनको रैलियों को छूट दी गई कि रैली करेंगे तो आप इतने लिमिटेड लोगों के साथ करेंगे। तो हमारे साथ चुनौती थी कि हमको रैली में भी जाना था, जनता से भी बात करना है कि उनका मूड क्या है, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो बाकी जाएंगे। आपको पब्लिक के बीच में जाकर पब्लिक का मूड भी जानना है, एक सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है। तो आपने कई बार गौर किया होगा कि हमारे माइक के साथ एक डंडा इतना बड़ा लगा होता है ताकि उसकी एक डिस्टेंसिंग हम मेंटेन कर सके। तो कई बार उस माइक का इस्तेमाल कर हम पब्लिक की राय जो है लेते थे। भाई पब्लिक के साथ जाकर, चाहे आपके आरा, सिद्धार्थ जी जहाँ के रहने वाले हैं, मैं आरा भी गया था, उस लिट्टी चोखा का दुकान जो था उससे प्रोग्राम मैंने किया, मुझे याद है। उस जो दुकान पे लोगों से बातचीत की, लेकिन हमने सबको पहले ही बता दिया कि आप दूर दूर बैठेंगे सब लोग, मैं अकेले आपके पास तक आ जाऊंगा, आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ बैठने की जो व्यवस्था थी उसमें कुर्सियों की हमने ऐसी व्यवस्था की कि लोग अलग अलग जगह बैठे, क्योंकि एक जनता की राय भी आपको दिखानी है, टीवी पर जानी है, और नेता जो रैली में बोलते हैं उसको भी आपको दिखाना था। भीड़ में रैली में जाकर रैली को कैसे कवर करना है, तो हमने अभी भी, मुझे याद है कि हम लोग, पानी की टंकी होती है कई जगह अलग अलग दूर जगह पे, तो घरों के छत होते थे, तो हम छत पे बैठ के उस रैली को कवर करते थे, क्योंकि दूरी से देखना है कि लोग भीड़ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यहाँ क्या बोला जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, अमित शाह क्या बोल रहे हैं, नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं, बाकी तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं। तो इन रैलियों में कुछ लोगों ने उसका पालन नहीं किया शुरुआत में, हालांकि उसकी वजह से दिक्कत भी आई। एक हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट है इंडिया टीवी का, पवन नारा, उसको वहीं फीवर हुआ, उसी कोरोना की वजह से उसको फीवर हुआ, हॉस्पिटलाइज रहा, और लगभग 17-18 दिन वो हॉस्पिटलाइज रहा पटना के हॉस्पिटल में। ऐसे कई केसेस थे, क्योंकि हम लोग भी अपनी सीमा कई बार तोड़ते हैं इस चक्कर में, क्योंकि आदत नहीं होती, आदत लगता है भीड़ में जाना है, पब्लिक के साथ बात करना है, और एक जगह अगर आदमी बात करता है तो उसको देखकर दूसरे चैनल से भी प्रेशर आता है कि भाई वो तो गया है, आप कैसे नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये अच्छा हुआ कि उसमें कुछ लोगों को ऐसी दिक्कतें आई, तो उसके बाद से चैनल ने सावधानी बरती और चैनल ने कहा कि आपको अपने आप को बचाते हुए काम करना है। तो हमारे लिए चैलेंज दिल्ली से ही शुरू होता था। अगर हम दिल्ली से निकल रहे हैं बिहार इलेक्शन के लिए, तो पहला ये तय करना कि हमें जाना किस माध्यम से है। भाई प्लेन से जाना है, ट्रेन से जाना है, या अपनी गाड़ी से जाना है। तो मैंने ऑप्ट किया कि मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। मैंने बकायदा इनोवा से यहाँ से निकला और मैं बिहार गया। फिर अगर आप बिहार जाते हैं, घुसते हैं, तो आपको रहना कहाँ है। अब जिस जगह पे जा चुके, बिहार के हम लोग रहने वाले थे, तो हम लोग के हमारे लिए दिक्कत नहीं थी, हर जगह हमें कहीं ना कहीं एक ठिकाना मिल जाता था होटल के अलावा, जहाँ खाने की व्यवस्था भी हो जाती थी और रहने की व्यवस्था हो जाती थी। हम वहाँ आराम से रह लेते थे, फिर अपनी रिपोर्टिंग भी करते थे और उसको भेजते भी थे। तो होटल से भी बचना है, खाने की व्यवस्था भी आपको देखना है। खाने का भी उस समय डर था कि आप कहाँ खाएं कहाँ ना खाएं, होटल कई जगह खुले होते थे, कई जगह नहीं खुले होते थे। तो चैलेंज हमारा जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का था वो दिल्ली से ही शुरू होता था कि हमें जाना कैसे है, फिर वहाँ रहना कहाँ है, फिर खाने की व्यवस्था कैसे करनी है, और रिपोर्टिंग करनी है तो कैसे सावधानियों के साथ करनी है। तो ये सारे चैलेंज बिहार चुनाव में लगभग मैं 1.25 महीने के आसपास सिद्धार्थ जी था, और उस चुनाव के एंड होने के बाद में वहां से काउंटिंग, सब सरकार बन गई थी, वहां से मैं निकला था। और उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट चुनाव आता है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, बंगाल चुनाव। बंगाल में मैं 2.5 महीने रहा, लगभग 2.5 महीने। और इस 2.5 महीने का आप सफर जो था, ऐसा लगता था कि मतलब 25 साल का सफर है। मतलब कैसे उस काट कर उस सफर से निकल के आपको आना है, क्योंकि शुरुआती दौर में तो दिक्कत नहीं थी। जब 16-17 अप्रैल के बाद जब ये खबरें आने लगी कि कोरोना का वेव बढ़ रहा है और इसमें जो है लोगों की डेथ होनी शुरू हो गई, मुझे आज भी याद है सिद्धार्थ जी की, जब हम लोग होटल में बैठे थे और अचानक खबर आई कि रोहित सरदाना की मौत हो गई। हमने अपने कलीग वहाँ दिखे, दूसरे चैनल में, वो दूसरे कमरे में ठहरे थे, मैं उनसे जाकर शेयर किया, और हम लोग कहते हैं पुका फाड़ के, जिसको रोना कहते हैं, हम लोग बैठ के उसमें हमारे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि एक यंग लड़का जो हमारे बीच का था, हमारे साथ था, जिसको कोई दिक्कत नहीं लग रही थी कल तक, वो अचानक हमारे बीच से चला गया। उसके बाद से जो डर का माहौल बना हम लोगों में कि भाई हम लोग अब कैसे रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि हम बंगाल में हैं और दिल्ली तक में हम सुन रहे थे ये खबर कि दिल्ली में कोई किसी की सहायता नहीं कर पा रहा है,
हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन के लिए लोग मारा मारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो हम एक तो ऐसे छोर पर बैठे हैं जहां हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, मतलब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसमें बस रिपोर्टिंग के हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं। तो आपको रिपोर्टिंग करते हुए ये डर बैठ गया मन में कि अब कुछ भी हो सकता है आपके साथ। जब रोहित सरदाना जैसा यंग लड़का जा सकता है तो आपके साथ भी कुछ हो सकता है। और अब इस माहौल में हम होटल से निकले कैसे, कहाँ जाएं, कैसे करें। हमने ऑफिस से बात भी की कि ऑफिस हमने करना क्या है। ऑफिस ने बकायदा, ये अच्छी बात है कि हमारे सबके ऑफिस ने ये कहा कि भाई आप लोगों को होटल में ही रहना है, सावधानी बरतते हुए खबरों पर नजर रखिए, लाइव करने के लिए अपना एक सिस्टम बना लीजिए, कहीं एक ऐसे जगह पर जहां भीड़ नहीं हो वहां से आकर बाहर से आप लोकेशन एस्टेब्लिश हो जाए कि भाई आप कलकत्ता में हैं, बस कल उसको एस्टेब्लिश करते हुए आप रिपोर्टिंग कीजिए। क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने अमित शाह का रोड शो कवर किया, प्रधानमंत्री की रैलियां कवर की। मुझे आज भी याद है, मुझे बहुत गुस्सा आया था उस वक्त में, और मैंने उसको ट्वीट किया था। सिद्धार्थ जी, आपने शायद उसको ट्वीट को देखकर आपने मुझे फोन किया कि रवि तुमने ऐसा लाइन कैसे लिया, और अच्छा किया तुमने ऐसा लाइन लेकर। मैं आज भी याद है कि मैं वहां था, सिलीगुड़ी में था, और सिलीगुड़ी में उस बूथ पे खड़ा था, और वोटिंग थी, मुझे याद है। वोटिंग के समय में सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे की बात थी। प्रधानमंत्री का अचानक ट्वीट आता है कि प्रधानमंत्री ने कुंभ में जो सारा भीड़ मच रही है हरिद्वार में, उसको लेकर साधु संतों से अपील की है कि आप लोग जो है इसको भीड़ को थोड़ा सा प्रतीकात्मक बनाइए। कुंभ को प्रतीकात्मक क्यों नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने साधु संतों से अपील की। और आश्चर्य की बात यह थी, इस सेम डे प्रधानमंत्री की बंगाल में 2 रैलियां थी, और उन रैली में भी उतनी भीड़ आती है, लाखों के आसपास भीड़ आती है। तो मुझे एक पत्रकार के तौर पर ऐसा लगा कि मुझे इसमें रुकना नहीं चाहिए। हालांकि दूसरे हमारे जो धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ थे, उन्होंने मना किया कि इसको सरकार शायद हो सकता है बुरा मान जाए, कई लोग गलत मानते हैं इस बात को। लेकिन मुझे लगा कि ये गलत है, और प्रधानमंत्री को टैग करके ये ट्वीट करना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री जी, अगर कुंभ प्रतीकात्मक हो सकती है तो आपकी रैलियां प्रतीकात्मक क्यों नहीं हो सकती हैं। आप तो वर्चुअल रैली के जाने जाते हैं, बिहार चुनाव में आपने इसका एक्सपीरियंस किया है। आप बंगाल की जनता को क्यों फंसा रहे हैं। और आपको खुशी होगी इस बात को जानकर कि उस ट्वीट का असर हुआ। बकायदे बीजेपी पर उसकी चर्चा हुई। कुछ दिन के बाद पहले तो प्रधानमंत्री की रैली कैंसिल की गई, प्रधानमंत्री की रैली आप नहीं होंगी, उस दिन की रैली कैंसिल सबसे पहले हुई। और उसके बाद जो हमने तरीका सुझाया था कि वर्चुअल रैली का, प्रधानमंत्री ने बकायदे फिर बाद में ये तय हुआ कि नहीं, प्रधानमंत्री सिर्फ 4 रैली करेंगे, इन जगहों पे जाएंगे, और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। तो हम लोग सिलीगुड़ी से मालदा की तरफ निकल रहे थे, चूंकि हमें कलकत्ता की तरफ आना था। मुझे याद है कि मालदा में हमने आकर रिपोर्टिंग की कि प्रधानमंत्री पहली रैली करेंगे इस कोरोना के दौर में, और ये सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है, जहाँ कुर्सियां यहाँ रखी गई हैं, 100, 200, 500 लोग होंगे। और उसको बताते हुए फिर हमने भी जिक्र किया कि क्या ये रैली कैंसिल नहीं हो सकती है, क्या क्या जरूरी है कि 500 लोगों के आने से कोरोना नहीं हो सकता है, क्या ऐसा ऐसा इसकी गारंटी को ले सकता है क्या। और मुझे याद है कि उसी दिन अमित शाह रोड शो कर रहे थे, और प्रधानमंत्री ने उनको डांटा था, जो खबर आई थी, और उनको वापस बुलाया गया था रोड शो से कि जब आप रैली खत्म कर रहे हैं, रैली नहीं कर रहे हैं, तो रोड शो कैसे कर सकते हैं, जिस रोड शो में लोग पीछे भागते हैं नेताओं के रैली के पीछे, उसके ट्रक के पीछे, और उस भीड़ में कुछ मतलब कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं होता। हम लोगों ने कई बार बोला उस चीज को, हमने बीजेपी के लोगों को भी समझाया, और हमने ममता दीदी को भी ट्वीट करके टैग किया। हालांकि उस समय राहुल गांधी की भले बुराई होती है, मैंने तारीफ की कि राहुल गांधी ने, कोई भी एक शख्स जिसने पहल की, राहुल गांधी पहली रैली मुझे लगता है वहीं सिलीगुड़ी करके आए थे, और दूसरी रैली से पहले उन्होंने ऐलान किया कि भाई हम इसलिए रैली नहीं करेंगे कि कोरोना का डर है, कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है इससे खतरा हो सकता है। तो उसको देखते हुए उसको कैंसिल किया गया, और उसके बाद धीरे धीरे ममता बनर्जी ने कहा कि इस चुनाव को एक साथ करा देना चाहिए। चुनाव आयोग इस पर डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। समस्या ये आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कई सारे आपके बंधन होते हैं, संवैधानिक बंधन होते हैं, तमाम सारी और चीजें होती है। चुनाव आयोग अगर चुनाव नहीं रोक सकता था, एक साथ सारे चुनाव को क्लब नहीं किया जा सकता था, क्योंकि 4 फेज के चुनाव हो गए थे और 4 फेज के बाकी थे। तो वैसी स्थिति में लोगों ने डेलीगेशन भी जाके मिला, मुझे याद है ऑल पार्टी डेलीगेशन मिला चुनाव आयोग से, बकायदे कलकत्ता में मीटिंग हुई, और ये डिसाइड करना था कि क्या चुनाव को एक फेज में कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है, या फिर रैलियों को रोक लगाया जाए, क्या ऑप्शंस तलाशे जाए। तो सारी पार्टियों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन उसमें फाइनली राय ये निकल के आई कि चुनाव कराए जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, और रैलियों को का स्वरूप जो है डिजिटल हो, वर्चुअल हो, खास तौर पर कहने का। और सब पार्टी ने सहमति दी। उसके बाद चाहे आपके बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों ने उसको फॉलो भी किया। तो एक अच्छी बात थी कि इस चीज को देखते हुए, हालांकि लेट से ये चीज हुआ, उससे पहले उसकी वजह से बंगाल में कोरोना काफी फैला, क्योंकि रैलियों में मुझे ध्यान है कि 90,000 लाख से कम लोग प्रधानमंत्री की रैली में नहीं आते थे। अगर ममता बनर्जी की बात करें तो 25, 30, 40 हजार की रैली वो कम से कम करती थी। तो इस तरह की जो भीड़ थी उसको रोका नहीं जा सकता, और उसमें किसी को जुकाम हो, किसी को सर्दी हो, किसी को क्या हो,
तो उससे चीजों को बचने के लिए ये किया गया। और चुनाव में लास्ट का जो 10 दिन था, हम लोगों ने ये तय किया, पहले मैंने गाड़ी वापस भेज दी थी दिल्ली, मैंने ये तय किया कि बिना वापस दिल्ली से गाड़ी भेजिए, चैनल को बोला, चैनल ने बकायदे गाड़ी भेजी, और मैं बाय रोड फिर कलकत्ता से 1600 किलोमीटर तय करके फिर दिल्ली आया। और उस दौर में मैंने ये भी देखा था कि जो पंचायत चुनाव, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव, आपको सिद्धार्थ जी याद होगी, जिस चुनाव की चर्चा थी, जिस पंचायत चुनाव की वजह से लगभग 1000 के आसपास शिक्षकों की मौत हो गई थी कोरोना के दौर में। और योगी सरकार का ये बहाना ले रही थी कि हाई कोर्ट का ये डिसीजन है और हाई कोर्ट ने कहा है कि हमें इसको करना ही करना है, इस वजह से उस चुनाव को कर रहे थे। हमने उसमें भी उनको कहीं ना कहीं टैग करके ट्वीट किया था कि इसको रोका जा सकता है इस चुनाव, अगर हाई कोर्ट ने कहा है तो स्थिति का हवाला देखते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। और कहीं ना कहीं योगी सरकार के खिलाफ जो माहौल बना उस कोरोना के उस दौर में पंचायत चुनाव ने बनाया। तो कई सारी चीजें थी पॉलिटिकल जो हम लोग कवरेज कर रहे थे, उसमें ये बड़ी चीजें थी। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का हमने कवर किया उसी दौर में, शुरुआती दौर में। बिहार चुनाव जो बीचों बीच था और पहला चुनाव कहा गया कि इस दौर में पूरे दुनिया में पहला चुनाव बिहार चुनाव कराया गया, वो हमने देखा। बंगाल चुनाव जो कोरोना के सेकेंड वेव के पीक में बिल्कुल हुआ, तो जिस वक्त लोगों को पता नहीं चल रहा था कि लोग बचेंगे नहीं बचेंगे, किसके परिवार में, कई परिवारों में 5-5 लोग की मौत हुई, कई परिवार में किसी के पिता गए, किसी के घर में बच्चा गया, मतलब किसी ने, हर परिवार की अगर चर्चा करें तो किसी न किसी को खोया ही खोया है उस वेब में। उस वेब में रिपोर्टिंग करके आना, अपने आप में निकल के आना, ये अपने आप में चैलेंज लगता था हम लोग, हम बच के जाएंगे क्या दिल्ली, मन में डर बैठा था। लेकिन भगवान का आशीर्वाद रहा कि हम लोगों ने रिपोर्टिंग भी की, आखिरी काउंटिंग के दिन तक सब चीज करके सरकार बन गई। उसके बाद हम लोग वहां से निकल के दिल्ली आ गए। लेकिन जो उसके बाद चैलेंज शुरू होता है सिद्धार्थ जी, उसके बाद फिर पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। और पार्लियामेंट सेशन में आपको कवरेज करने जाना है तो आमतौर पर पहले हमारे साथ कैमरामैन जाता था, कैमरामैन के साथ हम किसी का इंटरव्यू करना होता था, हम इंटरव्यू कर लेते थे। अब इस बार देखिए क्या इंटरेस्टिंग चीज होता है, क्योंकि आपको वहां भी जाना है, आप अंदर से लाइव भी नहीं कर सकते हैं, पार्लियामेंट में जो नियम है उसके अंदर आप अंदर से लाइव नहीं कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो रिकॉर्डिंग करते वक्त मोबाइल से अकेले आप एक नेता का इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी समझबूझ थी रिपोर्टरों के बीच में कि हम लोग, एनडीटीवी का रिपोर्टर जो था वो कैमरामैन की भूमिका निभाता था, और जी न्यूज का रिपोर्टर जो है, भले तालमेल ना हो, कहा जाता है जी न्यूज और एनडीटीवी में 38 का आंकड़ा है, लेकिन हम वहाँ एक होते थे, क्योंकि एक आदमी कैमरा संभालने वाला होता था, दूसरा आदमी उसको इंटरव्यू करने वाला होता था। तो हमने ऐसे कई इंटरव्यू, कई साथियों ने एक दूसरे के साथ मतलब सूझबूझ के साथ, क्योंकि सबको अपने चैनल पर चीजें दिखानी है। और पार्लियामेंट रिपोर्टिंग जो यूट्यूबर के लिए जो बात आती है, जो हमारे यूट्यूबर है जो किसान आंदोलन में खूब उन्होंने नाम कमाया है, खूब पैसा भी कमाया है, किसान आंदोलन में एक जगह बैठ गए, किसी तरह किसी से कुछ कहलवा लिया। हमने चुनाव में भी देखा, बंगाल चुनाव में कि रैलियों में जाते थे और किसी एक जगह कहीं कोने में बैठ जाते थे और अपने मन की बात कहलवा कर उसको ना, फिर उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करते थे। हमारे पास भी आता था, ये लोग आपको क्यों नहीं मिले, प्रधानमंत्री की रैली में तो मुस्लिम महिलाएं भी गई थी बुर्का पहने हुए, आपको कैसे नहीं दिखी। हमने कहा भाई हम तो भीड़ में आगे थे, वो यूट्यूबर कौन कहाँ था कैसे पता चले। तो ये आगे से एक रैली के बाद मुझे याद है कि हमने भी फिर ये प्रवृत्ति बनाई कि भाई हमको भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा, जो चीजें फोकस्ड है, कुछ चीज ऐसी है जो कि कहीं रैली में आप जाते हैं तो कुछ ऐसी खबरें होती है, कुछ लोग अच्छा फेस बना के आते हैं, कुछ लोग मुस्लिम महिलाएं अगर आ रही है पीएम की रैली में तो उसको आपको कवर करना है, ध्यान देना है। कुछ लोग राम अपने शरीर पर लिखवा के आते हैं, कुछ बंगाल, तो कुछ एंटीक जो चीजें होती हैं उसको आपको, क्योंकि हम लोग भीड़ की वजह से और कोरोना की वजह से एक जगह जो स्टैंड होता था उससे हिलते नहीं थे, चाहे अपना एक लोकेशन बना के रुक जाते थे। लेकिन हम देखा कि जब ये यूट्यूबर जो है ये तो हर कुछ करने को तैयार है, और जब आप यूट्यूबर करने को तैयार है तो आपको करना पड़ेगा। तो ये चैलेंज भी था और काम भी है। देखिए एक आप काम सीखते हैं लेकिन इस काम में आपको बचते हुए चीज करना था, लेकिन यहाँ ये बचने का मौका यूट्यूबर दे नहीं रहे थे। यूट्यूबर कह रहे थे भाई आपको तो हम कंपटीशन देने के लिए तैयार हैं, अगर आप ये चीज नहीं दोगे तो हम आप पब्लिक को ये चीज पहुंचाएंगे। आपने किसान आंदोलन में देखा, यहाँ पे किसान आंदोलन की जिस तरह से भद्द पिटी, तो तमाम लोगों को कोरोना हुआ, अभी भी किसान आंदोलन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों बॉर्डर पे बैठे हैं। सिद्धार्थ जी तो डेली सामना करते होंगे वहां से आते हुए जहां से रहते हैं, और तमाम लोग घंटों सामना करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो यूट्यूबर्स की जो एक फितरत है और जो काम करने का तरीका है, उसमें ये समझ में आया कि वो अकेला नाम कमाने के लिए काम करते हैं। एक आदमी काम करता है उसमें, तो हो सकता है एक आदमी उनका कैमरा चलाने के लिए काम करता है, पैसा भी बहुत आता है। अगर आपके लाइकिंग बहुत हो जाते हैं, हो सकता है लाखों में आपके व्यूअर्स हैं, तो आपके पास पैसा भी ठीक ठाक आ रहा है। लेकिन कमा कौन रहा है? सिर्फ 1 और 2 आदमी कमा रहे हैं। टीवी की इंडस्ट्री में तमाम लोग इससे ये काम करते हैं। उसी किसान आंदोलन को कवर करने के लिए हमारे 3-3, 4-4 लोग लगे होते हैं, अलग अलग चीजें आपको दिखाते हैं। एक लाइन नहीं लेते हैं,
क्योंकि यूट्यूबर के साथ एक और समस्या है जो सिद्धार्थ जी भी जानते हैं और अब तमाम लोग जानते होंगे कि आजकल क्या हुआ है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक लाइन ले ली गई है, चाहे तो प्रो मोदी चाहे एंटी मोदी, बीच का रास्ता बचा ही नहीं है। तो जो प्रो मोदी लोग हैं वो अपने यूट्यूबर जो चैनल है उनको पसंद कर लेते हैं, भाई ये लोग हैं, ये मोदी जी के फेवर में बोलते हैं, हमको इन्हीं को सुनना है और इन्हीं को देखना है, इनको उनको ही अपना सर्च किया, उनका नाम लिया, देखना शुरू कर लिया। जो मोदी साहब को गालियां देने वाले लोग हैं उसकी भी लंबी लाइन है यूट्यूबर्स की, और उनके भी अच्छे चाहने वाले लोग हैं, मतलब उसमें भी उनकी उनकी अगर देखेंगे लाइकिंग आप और उनके, तो उनका भी सिस्टम अपना बना हुआ है। तो यूट्यूबर हम नहीं हो सकते हैं, और यूट्यूबर से टीवी इसलिए अलग है कि टीवी में आपको बैलेंस दिखाना है। हो सकता है आप एक आप पर आरोप लगता है, जी न्यूज पर ये आरोप लगता है कि भाई वो प्रो मोदी चैनल है, प्रो सरकार चैनल है, एनडीटीवी पर ये आरोप लगता है कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट चैनल है, बावजूद इसके आप खबर दिखाते हैं। आपको खबर दिखाना है, खबर में आपका लाइनिंग एक आध प्रोग्राम में अलग ले सकते हैं, हो सकता है एक प्रोग्राम में आपका लाइन हो सकता है, खबर में एक आदमी लाइन ले ले, लेकिन पूरे चैनल का लाइन वो नहीं हो सकता है। तो यूट्यूबर से हटके काम करने का तरीका टीवी में ये रहा, और टीवी में ऐसा नहीं है टीवी खत्म हुआ। अब आप देख लीजिए कि इस दौर में दो नए चैनल शुरू हुए, TV9 भारत वर्ष हमने देखा चैनल शुरू हुआ, रिपब्लिक भारत, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है सिद्धार्थ जी कि इस कोरोना टाइम काल में आपको सुशांत सिंह केस जो मुंबई का था उसकी वजह से इतनी मारामारी हुई कि रिपब्लिक टीवी ने इतना हल्ला मचाया और इस तरह से लोगों को दिखाया कि हम ही हैं जो इस तरह का चीज कर सकते हैं। बाकी सारे चैनल भी उस पर टूट पड़े जाकर मुंबई, सब कोरोना को दरकिनार करते हुए, और फाइनली TRP बैन किया गया। तो TRP बैन होने का जो फायदा आम आदमी को मिला है कोरोना काल में, ये मिला है कि आपको मारा मारी नहीं, भागा दौड़ी वाली खबर नहीं, हर चैनल ने हर खबर को दिखाया और तसल्ली से दिखाया है, क्योंकि पिछले लगभग 8 से 9 महीने से TRP बैन है। और TRP बैन होने का फायदा ये होता है कि कोई कंपटीशन नहीं है कि हमको भागना है, इससे मारा मारी करनी है। मुझे आज भी याद है कि 2 तरह का कंपटीशन था, जैसे सुशांत सिंह केस खत्म हुआ, ऐसा लगा कि उसमें चीजें थोड़ी डाउन हो रही है, तो हाथरस में जो लड़की की रेप का घटना थी, दूसरे चैनल उधर टूट पड़े, उनको लगा कि रिपब्लिक ने तो वहां गेन कर लिया है तो हमें यहाँ ज्यादा गेन करना है। तो उसके बाद से जिस तरह से बैन लगा तो एक बैलेंस हुआ, मतलब बहुत मारा मारी नहीं रही कि हमको TRP लेना है, TRP में पता ही नहीं है कि आपकी TRP क्या आ रही है, आप नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, आपको खबर दिखानी है, हर खबर दिखानी है, चाहे वो कोरोना से जुड़ी खबर हो, चाहे चुनाव से जुड़ी खबर हो, चाहे फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट से जुड़ी खबर हो, हर खबर को आपको बैलेंस दिखाना है, और आज भी वही चल रहा है। तो इस तरह की चीजें हमने देखी सारी, जो हमारे ध्यान में आया आपसे, मतलब जो हमारा एक्चुअल एक्सपीरियंस था वो मैंने आपसे शेयर किया। साथ साथ और भी चीजें अगर आप लोग कहेंगे, हम तो चाहेंगे कि आप लोग सवाल जवाब करें तो ज्यादा अच्छा है, कि हमारे पास जो अनुभव है अगर सवाल जवाब करेंगे तो हम उनका जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि मेरे ध्यान में जो चीजें थी मैंने आपको बता दी। एक प्रश्न है हम लोगों के पास, लेकिन प्रश्न को का जवाब संक्षेप में दीजिएगा क्योंकि हमारे अगले स्पीकर ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है सर, ठीक है, प्लीज सलोनी। सर बहुत सारे सवाल जहन में आ रहे हैं, और एक सवाल जो मेरे जहन में सबसे पहले आ रहा है, वो आपने लास्ट में TRP की बात करी, आपने कहा कि TRP ने बैलेंस किया, लेकिन TRP के कहीं बैलेंस करने से कहीं पहले डिजिटल ने इसको कहीं ना कहीं बैलेंस किया है, क्योंकि डिजिटल में लोगों को मौका मिला कि वो शुरुआत करें। आपने कहा कि लोगों की हायरिंग डिजिटल में नहीं होती, लेकिन द वायर की शुरुआत भी डिजिटल से हुई, और द वायर आज अच्छा कर रहा है और उसने कई लोगों को हायर किया। इसी तरह कई लोगों की हायरिंग डिजिटल ने भी करी है, और स्टूडेंट्स के लिए भी एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को इस्टेब्लिश करने का। तो आपको क्या लगता है कि आगे जो डिजिटल है, क्योंकि इसके अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, डिजिटल पर हमें आना ही पड़ेगा, सभी के पास, सभी को डिजिटल पर आना है, तो इससे जुड़े आपको क्या लगता है कि अब डिजिटल पे नहीं रहना क्या किसी पत्रकार के लिए ऑप्शन रह गया है? नहीं, मैंने ऐसा कहा नहीं, मैंने कहा यूट्यूबर से मैंने कंपेयर किया। डिजिटल तो आप ध्यान रखिए कि हर चैनल में आज एक डिजिटल टीम है, हमारे चैनल में भी एक डिजिटल टीम है। आप जानती होंगे जी न्यूज का, जी डिजिटल का आपको पूरा प्लेटफॉर्म मिलेगा, NDTV का, हर चैनल का एक डिजिटल टीम है, और उस डिजिटल टीम के लिए हम भी काम करते हैं जी। उनके लिए स्टोरीज लिखना, हमारी स्टोरी छपती है, आप अगर टाइप करेंगे तो हमारी सारी स्टोरीज इस पे आ जाएंगी, बाई लाइन भी आएंगे, उसके साथ साथ आपकी वीडियोज भी आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि डिजिटल का हम विरोध कर रहे हैं, डिजिटल ने हमें कंपटीशन दिया, और उस कंपटीशन में हमने सीखा, हम तो मानते हैं कि हमारे लिए एक चैलेंज था, और चैलेंज के तौर पे हमने सीखा।
और वो जरूरी है आगे आने वाले समय में, उसको हमको सीखना है। यूट्यूबर से हम सावधान होने की बात करें, क्योंकि यूट्यूबर जो होते हैं ना, उनके साथ खास चीजें, उसमें आप बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं, पहला चीज। दूसरा चीज कि आप एक लाइन दिखा रहे हैं, सिर्फ एक पक्ष दिखाते हैं। आप देखिए कई सारी चीजें, कई लोग, नाम हम लेना किसी का उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन यूट्यूबर जो है सिर्फ एक पक्ष दिखाते हैं, चाहे वो एंटी सरकार दिखाएंगे चाहे प्रो सरकार दिखाएंगे। तो उस चीज से बचना चाहिए आदमी को। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो हमको आना ही है, हमें भी आना है, आपको भी आना है, सबको। हम जो अभी जो बातचीत कर रहे हैं, भी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक एग्जाम्पल है। सर, पत्रकार ज्यादातर सेल्फ टॉट होते हैं या उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू हो रही है, या मतलब क्योंकि कितना इन्वेस्ट करते हैं चैनल, जैसे जी की आप जी में काम करते हैं तो जी का आप बता सकते हैं कैसे कितना वो इन्वेस्ट करता है। इसी तरीके से एबीपी कितना इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली अपने जर्नलिस्ट को ट्रेन करने के लिए, ये मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, इसमें अलग अलग चैनल की अलग अलग नीति है, पॉलिसी है, लेकिन जहां तक जी न्यूज का सवाल है तो जी न्यूज हर कुछ समय पे एक अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम रखता है अपने रिपोर्टर्स के लिए। जैसे मैंने आपको बीच में बताया था कि जब डिजिटल की बात आई थी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आएगा और आपको अपने मोबाइल से ही, मान लीजिए आपके पास कैमरामैन नहीं है, चाहे आपके पास लाइव सोर्स नहीं है, तो लाइव सोर्स की आपको जरूरत नहीं है। आज की डेट में हमारे साथ लाइव सोर्स हो इसकी जरूरत नहीं है। हम अपने मोबाइल से स्काइप पे लाइव जुड़ सकते हैं, हम अपने साथ सिद्धार्थ जी को खड़ा करके लाइव में हम लाइव कर सकते हैं, बाकायदे डिस्कशन कर सकते हैं। अपना ट्राइपॉड लगाया हमने, उनको साथ में खड़ा किया, उनके साथ डिस्कशन करके उसको लाइव लेके जा सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग हर चैनल ने मुझे लगता है इस जगह दी है, क्योंकि जैसे ये चीज आया डिजिटल प्लेटफॉर्म का, मोजो जर्नलिज्म का एक दौर आया, मोजो पर बहुत लोग शिफ्ट नहीं हुए हैं, कोई हिचकता है, क्योंकि तमाम लोग जो है एक ट्रेडिशनल मेथड्स आ गया है कि कैमरामैन सामने खड़ा है, आपके पास दोनों हाथ फ्री है, आप सामने बात कर रहे हैं, इस ट्रेंड से साथ चलते हैं, तो वो उसमें भी संभव है। लेकिन मोजो जर्नलिज्म मैंने देखा कि हमारे कई साथी हैं, चाहे वो एनडीटीवी में भी है, आज तक में भी है, और अब हम लोग भी करते हैं। क्योंकि मोजो, आपने मोबाइल लिया अपने हाथ में, अगर आपके पास ट्राइपॉड है तो ट्राइपॉड के साथ आपने किया, और नहीं है तो अपने हाथ में आपने मोबाइल लिया और आप लाइव है, आप उस पर लाइव आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग आपको चैनल में दी गई है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे में से कई सारे साथी उसको ऑप्ट करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है इसमें, अरे यार ये बिना मतलब का काम क्यों पकड़ा दिया, जो कैमरामैन का काम तो साला हम ही क्यों करेंगे। तो ये ऐसी जो भावनाएं होती है, आदमी उसको नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करता है। अब नॉर्मल नेचर होता है इंसान का कि लोग नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, नए जो टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन आज की डेट में आपको जरूरत है और आपकी मजबूरी है। कोरोना ने सिखाया है कि आपको नई टेक्नोलॉजी को आप दरकिनार नहीं कर सकते, आपको उसको ऑफ करना ही करना होगा। जी जी सर, एक सवाल आया है आहाना जी का, उन्होंने कहा है, आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन ऑन मिसइंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन इन टीवी रिपोर्टिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक फेज, स्पेशली द न्यूज व्हिच वाज रिलेटेड टू कोविड-19। मिसइंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन पर वो बात चाहती हैं आप प्रकाश डालें। देखिए, इस तरह की शिकायत आई है कई बार। मैं देखता था हमारे घर में भी लोग कहते थे कि आप बहुत ज्यादा निगेटिव खबरें दिखाते हैं। एक शिकायत होती थी कि कोविड के दौर में लोग डर गए थे, कई लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया था, कई लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया था डर के मारे। सिद्धार्थ जी शायद जानते हो ऐसे केसेस जिनके सामने भी आया होगा, क्योंकि टीवी में निगेटिव रिपोर्टिंग भी हो रही थी। और मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए, मैं जो आपने कहा कि डिजिटल को आप छोड़ नहीं सकते, अब आप सोशल मीडिया पे कोई चीज आकर अगर वो वायरल हो जाती है, पता चलता है ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, तो टीवी के लिए मजबूरी हो गया आज की डेट में। टीवी उसको रोक नहीं सकता है। अगर सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो गई कि लखनऊ में शमशान घाट का एक वीडियो आया, वो टीवी का वीडियो नहीं था, किसी भी शख्स ने, पहला वीडियो वही आया था मुझे याद है, सेकंड वेव का, कि शमशान घाट में लाखों, हजारों की संख्या में देख रहे हैं कि डेड बॉडी जल रही है। और वो वीडियो जब लोगों के पास आया, किसी ने डाला सोशल मीडिया पे, तो उसको लोग रोक नहीं सके। एक ने चलाया, दूसरे ने चलाया, तीसरे ने चलाया, तो कंपटीशन में सबको लगता है कि ये जब ऐसा न्यूट्रल चीज है उसको हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें मिस इन्फॉर्मेशन में एक फैक्ट चेकिंग का भी हर जगह आप देखिएगा, हर चैनल पे एक बुलेटिन आने लगा है। पहली बार एबीपी न्यूज ने शुरू किया था उसको, आप लोग जानते होंगे कि क्या ये खबर सही है या गलत है, फैक्ट चेक का करने का। तो एबीपी न्यूज ने भी शुरू किया, हमारे जी न्यूज ने भी शुरू किया है, आज तक ने भी शुरू किया, तमाम चैनलों ने एक ये भी शुरू किया है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई सारी ऐसी जानकारी आती हैं जो गलत भी होती हैं, जिसको कहीं ना कहीं फैब्रिकेटेड होती हैं, उसको आपको परोसा जाता है कि आप उसका इस्तेमाल करके आप उसका वो बेजा इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब आपको यूज करना चाहते हैं, और हम कई बार यूज हो जाते हैं। ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है, क्योंकि हम इसलिए यूज हो जाते हैं क्योंकि हम सब लोग, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि किसी एक आदमी ने चला लिया तो दूसरे के पास ये मजबूरी होती है कि ये चीज आपके पास क्यों नहीं है। यहाँ ये गोली चली, एक आदमी स्कूटर से जा रहा है, किसी आदमी ने गोली मारी है, गोली का विजुअल जो है किसी के पास है, आपके पास नहीं है। तो ऐसी चीजें, और उसको फैक्ट चेक किया हुआ ना, अगर उसमें हुआ क्या है, किसने मारी है, नहीं मारी है, कब का विजुअल। कई बार तो देखा गया कि कोरोना टाइम में आपने 5 साल पहले का चीजों को इस्तेमाल कर लिया, वीडियो इस्तेमाल कर लिया, यहाँ के डेथ की खबर, ये चीजों में गलतियां हमसे हुई है, हमारे चैनलों से हुई है।
बट बाद में सबने ये माना है कि खबर को बिना क्रॉस चेक किए हुए, हमारे एडिटर्स ने भी बार बार मीटिंग में कहा है कि जल्दबाजी मत कीजिए। कई बार जल्दबाजी में खबरें गलत चली जाती हैं, हम भी चलाते हैं, तमाम लोगों से चल जाती है, लेकिन अब है क्रॉस चेक कर कर, अगर आप 100% कंफर्म है कि खबर सही है और आपका सोर्स सही है, तब उस खबर को चलाइए। गलतियां हुई हैं, सर। गलतियों को सुधारने का एक सिस्टम भी बनाया गया हर जगह। जी सर, एक आखिरी सवाल है सर कि जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए आप क्या लेसन्स देना चाहेंगे उनको कि कोविड-19 में वो किस तरीके की रिपोर्टिंग करें? अब देखिए, अभी तक तो हमने सेकेंड वेव देखा है, थर्ड वेव की चर्चा हो रही है, तो कब एक अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। कई बार कहते हैं ना कि आपको एक्सपीरियंस, अनुभव सिखाता है, उम्र का अनुभव हो चाहे काम का अनुभव हो। तो फर्स्ट फेज में क्या क्या कमियां रही उसको हमने सेकेंड वेव में देखा। सेकेंड वेव में जो चीजें हुई उससे हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि एक्सट्रीम था सेकेंड वेव में, जिस तरह से लोगों की स्थिति थी, जिस तरह से देश के में स्थिति थी, लोगों को कोरोना से बचे तो बेचारे, फिर पता चला फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो इसमें तमाम सारी चीजें हम समझ गए हैं। अब इसको समझ के इसी हिसाब से रिपोर्टिंग, आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है, आपको खबरें भी देनी है। भाई खबर जो अगर दिख रहा है कि हॉस्पिटल में डेड बॉडीज पड़ी हैं और उनको उठा के कोई ले नहीं जा रहा है और घर वाले परेशान है कि उनको बॉडी नहीं मिल रही, तो उनको आपको बताना पड़ेगा ना कि ये सिचुएशन है। उसकी जानकारी कौन, सरकार आपको बताएगी नहीं। तो ये अगर इन्फॉर्मेशन आप जनता तक पहुंचाएंगे तो लोगों को रिपोर्टिंग करनी है, सावधानी बरतनी है और प्रोएक्टिव रहते हुए गलत खबरों से सावधान रहते हुए रिपोर्टिंग करनी है। जी सर। सर बहुत ही आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत शॉर्ट में, बहुत क्रिस्प तरीके से सारा कुछ पॉइंट वाइज हमें बता दिया। पूरा आपने शुरुआत से अंत तक, ऐसा लगा हमारे सामने वो सारे सीन हमारी। और रोहित जी के साथ मेरा भी पर्सनल एसोसिएशन रहा, उनका जाना मेरे लिए भी बहुत 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 दुख की बात थी। सर इस पूरे एक तरह से एक बहुत भयावह कह सकते हैं आप इसको, आपने जिस दौरान जिस समय को आपने देखा। सर सिद्धार्थ सर भी हमारे साथ है। इस सेशन का क्लोजिंग रिमार्क अगर वो दें तो बहुत अच्छा रहेगा। सिद्धार्थ सर प्लीज आप इसको क्लोज करें सेशन। थैंक यू सलोनी। रवि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दिल से बात की। आपके साथ पहली बार ये शेयर करने का मौका मिला था। एक रिपोर्टर का जो दर्द होता है वो दुनिया बहुत कम समझती है। पता नहीं, नेता कह देंगे प्रेस्टिट्यूट है, ये है, वो है, फलना है, ढेकना, लेकिन रिपोर्टर रिपोर्ट को कैसे निकाल करके लाता है, बिका हुआ है। मैं तो 30 साल में खोजता रहा कोई मुझे खरीदे, मुझे कुछ लेकिन कुछ होता नहीं। और सबसे बड़ा तो मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्ल्ड। मतलब जो एक, अब मेरे ख्याल से मेरे कलीग शंभू ने पूछा था कि क्या मैसेज देना चाहते हैं आप बडिंग जर्नलिस्ट को, तो सबसे बड़ा मैसेज तो यही है, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट प्रोफेशन। रिपोर्टर का काम बहुत डिफिकल्ट काम होता है, बहुत चैलेंजिंग काम होता है। और जो एक आपका एक सोशल ऑब्लिगेशन होता है, एक सोशल चैलेंज भी होता है कि मतलब आपके अंदर एक उस तरह का पैशन भी होता है कि नहीं, हमें एक बात दिखानी है, करनी है। सो व्हाट अगर मेरे ऑफिस ने मुझे कहा कि घर बैठ के काम करो, लेकिन अंदर से ये होता है कि नहीं, आई हैव टू गो। मतलब मेरे जैसा आदमी जो कि एक्टिव जर्नलिज्म से, रिपोर्टिंग से रिटायर हो चुका है, वो भी उस पीरियड में लगता था कहीं ना कहीं बाहर निकल के कुछ लिखो, कुछ करो, इसके ऊपर कुछ बताओ, इसके ऊपर जो चीज नजर आ रही है। और आपने जो मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन की बात आई, तो इसमें दो बातें थी। कुछ लोगों ने जानबूझ के खबरें फैलाई, वो डिस इन्फॉर्मेशन थी। और मिस इन्फॉर्मेशन थी कि अज्ञानता थी लोगों के बीच में, पता ही नहीं था क्या है, जानकारी नहीं थी, वो जानकारी नहीं थी क्या है, किसने, कोई डॉक्टर को नहीं पता था, हकीम वैद्य किसी को नहीं पता था। तो फिर रिपोर्टर बेचारा क्या जो है सो, उसको जो खबर मिल रही थी उसने कहा। इनफैक्ट आपके हमारे मित्र सतपाल जी आए थे एक सेशन में कुछ दिन पहले हम लोग क्या, उन्होंने बताया कि शुरुआत, चूंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में उस समय पीरियड में थे, वो कैसे सरकार ने फ्रॉम स्क्रैच एक इतना बड़ा इंफॉर्मेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया कोरोना के पीरियड में। तो वो सब चैलेंजेस रही कोरोना की। और ठीक है, बाकी कई चैलेंजेस और आई, चैनल्स के लिए चैलेंजेस आई, लेकिन चैनल्स ने कूप अप किया। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि जिस दिन आपने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री के बारे में और रैलीज के बारे में, मुझे तो चिंता हुई थी कि अब आपकी नौकरी गई। क्योंकि आपका चैनल एक इट्स कंसिडर्ड टू बी प्रो गवर्नमेंट चैनल, लेकिन मैं पत्रकार भी हूँ ना, पत्रकार मन कई बार आपको लेकिन वो जब देखा तो, लेकिन ये भी एक अच्छी बात, समझने वाली बात है। जब हम गाली गलौज के इससे बाहर निकल कर देखें तो कहीं ना कहीं सरकार ने भी गरिमा दिखाई कि
दे टुक इट इन द राइट स्पिरिट और रैलीज बंद हुई, बाकी बंद हुई। और आपके पास अभी भी पार्लियामेंट और गवर्नमेंट बीट बचा हुआ है, वरना लोग आपका बीट शायद कुछ अभी तक अंडमान निकोबार हो चुका होता। तो अगर ऐसी बात होती तो ऐसा नहीं है। मतलब कि पत्रकार का एक अपना स्ट्रेंथ होता है, और जो ये कहता है कि, और वो एक चैलेंज होता है कि वो कैसे डोमिनेंस को फेस करे। गवर्नमेंट क्यों नहीं डोमिनेट करेगी, उसको आप कैसे स्टैंड अप करते हैं, ये तो आपका ही है। थैंक यू सो मच। कभी आपको अलग से आपका 2 घंटे का सेशन कराने का आप समय आ गया लगता है, वो अलग से कराएंगे कभी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।